थैंक यू। ऊपर से ही कर लेते हैं, लेकिन है तो कॉन्सेप्ट विद चाय। चाय से जो बूस्ट मिलता है कॉन्सेप्ट को, वो नथिंग लाइक इट। Totally agree. Assalamu alaikum, this is Rehan Rafiq. Welcome to Concepts in Chai. Today we'll be discussing about our economy and a very heated intellectual topic where we'll be discussing about how our economy went from gold coins to IMF. And for that, we need someone to shed some light on history. And we have Sir Waqas with us, who teaches Pakistan Studies and Islamiyat. How are you, sir? Alhamdulillah, sir, I'm great. I'm honored to be a part of the conversation. Okay, sir. So, as you have a strong connection with history, I really want to know कि कैसे, how did it go from Mughals to the East India Company, and what was the economic connection between there? If you can shed some light on that. Sir, I'll be honest with you, people, although don't like this topic so much, but I'm glad that you have asked me this question. Taking light into the history, obviously, is something which we as teachers, we like. Students although don't enjoy. But I think the trade basically starts from the EIC company, where they actually got involved into the Indian subcontinent way back in the 17th century. It was the Queen. The England is also connected. The subcontinent is also connected. Pakistan and India has its roots. In fact, we get a question that why do we have to study about British history for Pakistan studies? So the answer is very simple. It has the connection from the British rule. So that is where it all starts from. Achha, so sir, I wanted to know that the economic breakdown or the main hurdle of the Mughal Empire economically was what? Was it the East India Company, the early invaders of the British? कौन थे वो लोग exactly जिन्होंने मुगल economy को dent दिया? So basically, sir, this is very simple for us because this is one of our question from the syllabus also. And in fact, question की wordings भी कुछ इसी तरीके से होती है कि was the British, was the arrival of the British the main reason? तो उसका connection एक नहीं है. I'll be very clear in this कि it has a connection of multiple events. Invaders का आना, नादिर शाह का आना, उसका मुगल से बहुत कुछ ले जाना, लूट के ले जाना, कोहिनूर का ले जाना. इनफैक्ट जो ब्रिटिशर्स ने आके जो लोकल मार्केट्स के अंदर अपना कॉटन जिस तरीके से सेल किया, और पूरी यू कैन से इकोनॉमी का जो बैकबोन था, जो कॉटन टेक्सटाइल मिल, जो बेसिक आइटम्स थी, उसको ऑब्वियसली अपनी मार्केट में कंपेटिटिव करके अपनी प्राइजेस से समझ लिया एक तरीके से उसको टेक ओवर कर लिया. सो वो सब का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है. बट यस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल बिकॉज आई कैन से दिस इन दीज वर्ड्स के ब्रिटिशर्स हैड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसको मैं एक वर्ड में डिफाइन करूंगा, मोस्ट एडवांसमेंट्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर लाइक कॉटन मशीन, इवन स्टीम इंजन, जो हमारे लिए एक बहुत बेसिक इन्वेंशन थी आज के ज़माने में, बट उस ज़माने में ये एक रेवोल्यूशन थी. इसने ट्रांसपोर्ट, गुड्स, रेलवे, आर्मी, उन सब के साथ साथ ट्रांसपोर्ट को बहुत इजी किया, जिसकी वजह से ट्रेडिंग गुड्स गई और वो इंग्लैंड तक जाने लगी. और ऑब्वियसली लोकल कॉम्पिटिटर्स और लोकल इंडियन प्रोड्यूसर्स उसको कम्पीट नहीं कर पाए. तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है. इनफैक्ट ये हमारा एक इकोनॉमिकल रीज़न भी है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, that the local zamindars or you can say the local producers were given a very tough time. तो एक रीजन है. बट यस, अराइवल ऑफ ब्रिटिश सबसे मेन है इसमें कि कैसे उनकी वेल्थ और उनकी आर्मी ने कंट्रीब्यूट किया. अच्छा, तो सर व्हाई इंडिया? इज इट बिकॉज जो ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी थी, इट वाज नॉट एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी? वाज दैट द प्राइमरी रीजन? ओके, सो बेसिकली इट अगेन टेक्स मी टू दैट कॉन्सेप्ट अगेन. लकीली ये हमारा एक और क्वेश्चन है, व्हाई द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट इन्वॉल्व इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. बहुत एक बेसिक, बहुत फेवरेट, बहुत इजी क्वेश्चन है हमारा. सो देखिए, इसका एक बैकग्राउंड है. हिस्ट्री बोरिंग लगती है लेकिन इसका एक बैकग्राउंड है. ये बात जाती है क्वीन एलिजाबेथ वन, जिनको यू कैन से द मोनार्की सिस्टम उस जमाने का कहते हैं.
1600 की बात है, आप कह सकते हैं 17th सेंचुरी। ट्रेडर्स ने अपना पेट भर लिया था इंग्लैंड से। मैनचेस्टर, लंदन, बर्मिंघम, जो जो उस ज़माने के जो मेन सेंटर्स थे, वहाँ पे ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, वो अपना यू कैन से एक उस मार्केट का जूस निकाल चुके थे। अब नाउ द क्वीन कॉल्ड देम, और वो चाहती भी थी, और एक तरीके से कह लें कि गवर्नमेंट चाहती थी कि अब दुनिया में न्यू एवेन्यूज ढूंढे जाए और कुछ ऐसा ट्रीट किया जाए जो ब्रिटेन में वाकई नहीं मिलता। हाँ, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ब्रिटिश के पास कार्डिमम, इलायची, कॉटन, स्पाइसेस, इंडिगो, डाई, ओपियम, ये सारी चीज़ें कॉमन नहीं थी। और इन चीज़ों की मेन मार्केट, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि इंडिया वॉज रिच फॉर इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, जिसकी हमारी बुक में एक टर्मिनोलॉजी है गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया। तो इंडिया यस उस ज़माने में सोने की चिड़िया थी, सब आना चाहते थे, एक हिडन जेम था। लेकिन अगेन एक ट्विस्ट है, ब्रिटिशर्स को एक्चुअली क्वीन एलिजाबेथ की तरफ से जो परमिशन मिली थी, दैट वाज सपोज टू बी इन ईस्ट ऑफ अफ्रीका। अब वो ईस्ट ऑफ अफ्रीका इज बेसिकली इंडोनेशिया, मॉडर्न डे इंडोनेशिया। अब आप उसको इंडोनेशिया कह लें, फिलीपीन कह लें, ये वो जगह थी। बट अगेन वही बात है कि वहाँ वो क्यों नहीं गए। एक्चुअल में वो वहाँ गए, डच, एक और यूरोपियन कंपनी, एक कंपटीशन, एक क्लैश, जिसकी वजह से दे हैड नो अदर ऑप्शन बट टू कम टू इंडिया। सो वी कैन से दिस इन दिस वर्ड्स कि इंडिया वाज देयर नेक्स्ट चॉइस, क्योंकि ईस्ट ऑफ अफ्रीका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट जहाँ यही सब मैंने आपको बताया, इंडिगो, स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन, कार्डिमम, ये सारी चीज़ें जो लाइक दुनिया में फेमस थी, वो इंडिया था। तो इंडिया में सूरत उनकी पहली जगह बनी। सूरत मशहूर ही है, गुजरात, व्यापारी एंड बिजनेस एंड तिजारत एंड सो इसीलिए सूरत उनकी पहली चॉइस बना। सो इसलिए यस, एग्रीकल्चर इज नॉट द चॉइस फॉर द ब्रिटिश, इट वाज नॉट इन देयर नेचुरल यू कैन से फिनोमिना, तो वो इसलिए यहाँ पे है। सर, तो बेसिकली कंक्लूजन ये है कि इकोनॉमिक इफेक्ट तो था हमारी हिस्ट्री में, लेकिन बिफोर पार्टीशन what were the economic effects and क्या at the time of partition या पाकिस्तान as a separate country इस पे भी कोई इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया ऑफ द डिसीजंस ऑफ द ब्रिटिश या उनकी कोई एक्ट्स की वजह से? बेसिकली बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इनफैक्ट हम आज तक सफ़र कर रहे हैं। लेट मी मेक इट साउंड इन अ डिफरेंट वे। पार्टीशन के जो आउटकम्स थे, दे वर वेरी वेरी सीरियस, दे वर वेरी वेरी यू कैन से लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि पार्टीशन से पहले ही द गॉसिपिंग एंड द र्यूमर्स वर वेरी मच अराउंड, और ये काफ़ी ज़्यादा यू कैन से कायदे आज़म एंड द इंडियन पॉलिटिक्स उस ज़माने की जो भी है, इट ऑल स्टार्टेड विद द ब्रिटिश, लाइक मेक इट 1940 से यू कैन से द प्राइम मिनिस्टर्स वट एवर दे केम, मिस्टर चर्चिल थे, एटली थे, दे ऑल हैड एन इम्पैक्ट ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। लॉर्ड माउंटबेटन जब लास्ट वाइसरॉय, जिन्होंने जब पार्टीशन अनाउंस भी किया, उससे पहले भी पाकिस्तान को ये र्यूमर्स आ गए थे कि पाकिस्तान का शेयर बहुत कम होगा। वी वर 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन, तो उस हिसाब से वी कैन से कि हमें वो भी नहीं मिला, समझ लें हमें वो भी नहीं मिला। और उसके डेवस्टेटिंग इफेक्ट ये हुए कि पार्टीशन के टाइम के बाद फाइनेंशियली, मिलिट्री वाइज, मैन पावर वाइज, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वाइज एंड एक्सपीरियंस स्टाफ, ये हमारे पास लैक कर रहा था। मैं इसकी मिसाल बच्चों को भी ये देता हूँ, क्लासेस में वी डिस्कस एवरी टाइम। बहुत सिंपल सी बात है, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, कभी हमने कोयटा रेजोल्यूशन या मुल्तान रेजोल्यूशन या लेट सपोज फैसलाबाद पैक्ट, ऐसा कुछ नहीं सुना। हमने दिल्ली सुना, हमने हमेशा लखनऊ सुना। तो हमारा पार्ट जो पाकिस्तान विच स्टिल टुडे, it was never a first choice of the British political development or any kind of progress. इसीलिए वो बहुत लैग कर रहा था। कराची एंड लाहौर वर द मेजर सिटीज, बट दे ऑल्सो लुक लाइक विलेजेस। तो पार्टीशन से पहले भी और पार्टीशन के बाद तो चले एक बहुत ही डेवस्टेटिंग, उसके कुछ रेशोज भी हैं विच वी कैन ऑब्वियसली डिस्कस एंड वी हैव इन डिटेल। बट उसका इम्पैक्ट आया ऑब्वियसली। कायदे आज़म just live for 11 months, or फिर the like whatever he could do he did, but I still felt के
there was a lot that was supposed to be done, and that is why the burden was put upon the people who came after him. अच्छा, तो बहुत क्लियर हो गया सर काफ़ी हद तक कि किसने इम्पैक्ट किया before the Britishers came, after they came, and how they influenced the Pakistan's economy at the start. उसके बाद क्या हुआ? कौन से रूलर्स ने उसका फ़ायदा उठाया? कौन से हमारे प्राइम मिनिस्टर्स थे, प्रेसिडेंट थे, या वी कैन से कोई और थर्ड इन्फ्लुएंसेस थे हमारी इकोनॉमी पे, जिनकी वजह से जो है हमारी इकोनॉमी को काफ़ी इम्पैक्ट हुआ इन द अर्ली 1960s, 50s, 60s and 70s. So ये जो आपने थर्ड पर्सन बोला, दैट वाज अ बिट फिशी. पाकिस्तान की ऑब्वियसली पॉलिटिकल करियर में हमेशा एक वैसे पता नहीं मुझे इस बात पर डर लगना चाहिए या बोलने देना चाहिए. हमारे यहाँ एक ऑब्वियसली आर्मी का रोल रहा है, और पाकिस्तान की हम जब हिस्ट्री को उठा के देखते हैं तो देयर आर मल्टीपल, इनफैक्ट हमारे ऑलमोस्ट 5 to 6 मेजर आर्मी रूलरशिप हैं, जिसको हम मार्शल लॉ कहते हैं अपनी ज़बान में. तो यस, एक अच्छा सवाल है, एक बहुत यू कैन से एक कनेक्टिंग सवाल है कि किसने क्या क्या इम्पैक्ट किया और कौन इसको लेके गया. लेकिन बात स्टार्ट होती है कायद आज़म की डेथ से 11 सितंबर 1948, जब पूरा मुल्क एक शॉक में है. लियाकत अली खान, सेकंड मोस्ट फेमस पर्सन ऑफ पाकिस्तान, जिनको आप लोग सब जानते हैं. शौकत अली को गोली लगी, हम अपनी क्लासेस में कहते हैं लियाकत अली को भी गोली लगी, सारी दुनिया रोने लगी क्योंकि गोली उन्हें भी लगी. वहाँ से 4 साल का पॉलिटिकल करियर शुरू होता है. 4 साल में वो भी जो कर पाते वो करते हैं. कुछ लोगों की नज़र में वो लीनियंट थे, कश्मीर इशू सॉल्व नहीं कर सके. कुछ काम उन्होंने किए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किया, कुछ थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दी, बट नॉट इनफ. फिर कुछ ऐसा 10 years का फेज आया जिसमें कुछ आई वुड से नॉट वेरी फेमस, बट ख्वाजा नजीमुद्दीन आए, मलिक गुलाम मोहम्मद आए. इनका नाम आप लोगों ने शायद कम सुना है बिकॉज इनका पॉलिटिकल करियर बहुत शॉर्ट था. और फिर एक फेमस अंकल आते हैं जिनका नाम था अयूब खान, जिनका टाइम पीरियड आज बच्चे, हम, बुक्स गोल्डन पीरियड के नाम से जानते हैं. वहाँ से पाकिस्तान की यू कैन से इकोनॉमी का एक टर्न अराउंड हुआ, जिसको हम कहते हैं गोल्डन पीरियड, ग्रीन रेवोल्यूशन. पाकिस्तान ने अगर कभी किसी के टाइम पे अगर यू कैन से प्रोग्रेस किया है तो वो अयूब खान है, क्योंकि अयूब खान के टाइम पे हमारी इकोनॉमी वाज यू कैन से 3 times मोर देन दैट ऑफ इंडिया. ऐसा हमारी बुक्स में लिखा हुआ है. और हमारा सबसे ज़्यादा क्रॉप आउटपुट था. एग्रीकल्चर होने का हमें उन सालों में बहुत फ़ख्र था. हमारा वो डेकेड, वो 10 अच्छे साल हमारे वाकई में अच्छे थे, कहने को अच्छे नहीं थे, रियल में अच्छे थे. इकोनॉमी वाइज हमारा उन सालों में फॉरेन रिलेशंस हमारे अच्छे हुए. पहले अयूब खान लीडर बने जिन्होंने यूएसएसआर, चाइना, ऐसी कंट्रीज का विजिट किया. तो ये एक बहुत एक यू कैन से लंबी कहानी है, लेकिन मैं अगर आपको शॉर्ट करके बताऊं तो एक बहुत गोल्डन पीरियड है. लेकिन उसके बाद कुछ डिजास्टर भी आए, और एक बहुत फेमस डिजास्टर है बांग्लादेश का. हमारा मुल्क आधा हो गया 1971 में, और वो एक मिस्टेक के हैं, मिसहैप के हैं, और आजकल की ज़बान में ब्लंडर के हैं. तो यस, वो गलत नहीं होगा कि वो आर्मी का या जिसका भी एक छोटा सा एक ब्लंडर था, जिसकी वजह से वी लॉस्ट हाफ ऑफ आवर कंट्री. हाफ इसलिए कहते हैं क्योंकि बंगालीज बहुत थे. एंड देन भुट्टो केम, नेशनलाइजेशन, समवॉट अ डिजास्टर. बट इन पॉलिटिकल करियर, जैसे कहते हैं जियो भुट्टो, तो पॉलिटिकल करियर एंड फेमस वाइज ही वॉज नाइस. और वहाँ जिसको मैं कह सकता हूँ हिंदी ज़बान में जन्म होता है डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का, जो आज आपके एक लीडर की प्रेजेंस आपको याद दिलाता है. उस ज़माने का जो फेमस खान साहब थे वो भुट्टो साहब थे. सो ज़बरदस्त सर, बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन आपने बनाया. आपके इसी बात जो डेमोक्रेसी वाली बात की कि डेमोक्रेसी ने जन्म लिया है, बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? सो दैट बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी वाज एक्चुअली द बर्थ ऑफ ओपन करप्शन इन पाकिस्तान, वी कैन से. दैट लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द इकोनॉमी फर्दर. जैसे सर ने अयूब खान के ग्रीन पीरियड के बारे में बात की, जो बहुत ही गोल्डन पीरियड था, नो डाउट.
इट वाज अ रेवोल्यूशनरी पीरियड, बट एट द सेम टाइम जो हमारे ड्रॉबैक्स डाउनफॉल्स आए, स्पेशली बांग्लादेश, बांग्लादेश वाला इशू, दैट पार्टीशनड, एंड उसके अलावा फिर वी हैड टू फेस टू वॉर्स 65 एंड 71. वॉर्स का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑब्वियसली वी वर यूजिंग अप आवर रिसोर्सेज. वो रिसोर्सेज भी हमें अमेरिका और दूसरी कंट्रीज के जरिए आई थी, और उन रिसोर्सेज को हम लोगों ने वॉर्स पे एग्जॉस्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में सैंक्शंस भी देखने को मिले, इकोनॉमिक सैंक्शंस. आई एम श्योर यू गाइज नो अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली इन द ईरान, इजराइल एंड अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट. सो सैंक्शंस भी हमें फेस करने को मिले, क्योंकि हमें रिसोर्सेज मिल रही थी, हमारा अच्छा इकोनॉमिक पीरियड चल रहा था. लेकिन पोस्ट दैट जब डेमोक्रेसी आई, कुछ रूलर्स की करप्शन थी, और कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट इस तरह था सैंक्शंस वगैरह का, जिसकी वजह से पाकिस्तान इन्फ्लेशन इट ग्रू and it went up to more than 25%, right? Economic growth rates down हो गए, बार बार dictatorship and democracy का जो combination रहा है, उससे stability नहीं आई इकोनॉमी. Our GDP was compromised, employment के issues थे, भुट्टो हो गए, अयूब खान या उसके बाद ज़ियाउल हक आए, सबने एम्प्लॉयमेंट के वादे तो किए, मगर अनएम्प्लॉयमेंट को कम कोई भी नहीं कर सका. इट रोज थ्रू आउट, राइट? और फिर साथ ही साथ आइसिंग ऑन द केक, पॉपुलेशन का बहुत बड़ा इशू, जो कि इकोनॉमिक मसला भी है, और जोग्राफी का भी एक बहुत बड़ा इशू. So population was actually rising, and it led to more unemployment issues of Pakistan. So, sir, connecting present with past, how how is this all happening similar to the happenings of the past, especially this economic impact? कुछ similarity है अभी के economic मसाइल की पुराने economic मसाइल से pre partition era? बिल्कुल है. सर, औरंगजेब के ज़माने में, विच टेक्स बैक टू द मुगल एरा, उस ज़माने में औरंगजेब लाइक अपॉइंटेड मनसबदार्स, जो टैक्स कलेक्टर्स थे, और उनका भी यही रोना धोना था कि ऑब्वियसली कि हम टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे, पीपल आर नॉट पेइंग एंड वी आर नॉट एबल टू कलेक्ट द टैक्सेस. और अगर वो टैक्स कलेक्ट हो भी रहा है तो वो ट्रेजरी में नहीं जा रहा, बैतुल माल में नहीं जा रहा, माल गनीमत में नहीं जा रहा. वो मसला आज भी आ रहा है कि हमारा टैक्स नेट आज भी बढ़ नहीं पा रहा. उस हवाले से, या उसके खालिस उर्दू में हम कहेंगे इकदामात तो किए जा रहे हैं, वी आर टेकिंग मेजर्स, बट उस तरीके से वी आर नॉट एबल टू अचीव द डिजायर्ड. तो क्या इसके पीछे भी लीडर्स थे या वो मनसबदार थे? मतलब इन सिंपलर वर्ड्स, वर दे द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट सर्वेंट्स? सर देखिए, हमेशा ताली दो हाथ से बजती है. तो वहाँ भी प्रॉब्लम थी औरंगजेब की, लैक ऑफ फोकस एंड बिजी इन द लग्जरीज ऑफ लाइफ. अब यहाँ भी ऑब्वियसली देखें, पॉलिटिशियंस जो हमारे हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जिनको हम ही चुनते हैं, जो डेमोक्रेटिक आ रहे हैं, आई एम नॉट टेकिंग साइड ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट हम जिसका भी नाम लेते हैं वो प्रोमिसेस हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन, व्हेन इट कम्स टू डिलीवरिंग, तो अवाम ने सबको ट्राई कर लिया है. अवाम ने, मतलब जो न्यू जनरेशन है, जेनजीज, उन्होंने न्यू पार्टी को भी एक चांस दे दिया है, और उसका भी उन्होंने देख लिया कि देयर आर स्टिल सम प्रॉब्लम्स. तो अच्छा लीडर मेरे ख्याल में वो नहीं है जिसका आप विजन रखते हो कि ये अच्छा करेगा. मेरे ख्याल में अच्छा लीडर वो है जो लोगों से काम करवा पाए. क्योंकि अगर आपका लीडर फेमस है, आपका लीडर ऑनेस्ट है, बट उसके साथ चलने वाले लोग उसका साथ नहीं दे पा रहे, जो कि हमने पाकिस्तान में देखा, तो उसका फायदा नहीं है. बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन उसमें फिर जेनजीज जो हैं वो आपसे कॉन्ट्रडिक्ट भी कर सकते हैं. सर वो ये बोलेंगे कि अगर फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, कुछ बीच में इंट्रूजन करके जबरदस्ती जो है वो इक्तदार को साइड पे किया गया, तो वो तो उस पर क्लेम करेंगे. हालांकि हमने खुद वो अरसा भी देखा जिसमें कुछ पाकिस्तान की इकोनॉमी ड्रास्टिकली चेंज नहीं हुई. जैसा आपने कहा, काम करने वाले साथ जो हैं वो उस तरह का नहीं था, लेकिन इन दी एंड जो पॉलिटिकल सिस्टम में जो फ्लॉ है वो तो उनको पीछे छुपने का एक मौका दे देगा. एग्जैक्टली. सर देखें, 2018 से लेके 22 तक तो फुल चांस मिला, और
नॉट कंसिडरिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट जितने भी लोग आए मतलब इक्तदार में या हुकूमत में आए, पंजाब केपी के जहाँ भी मेजॉरिटी काम किया, कुछ लोगों की तरफ से एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उन्होंने डिलीवर किया कंसिडरिंग पंजाब चीफ मिनिस्टर। कुछ लोग ऐसे आए जो एक्सपेक्टेड तो था कि काम करेंगे लेकिन नहीं कर पाए, असद उमर पॉलिटिकल सिनेरियोज बना दिए गए जी इस तरीके से। तो वही बात आ जाती है कि इट्स नॉट द हाइप विच विल गिव यू द रिजल्ट्स, इट्स एक्चुअली द डिलीवरेंस, इट्स एक्चुअली द एक्सपीरियंस। देखिए पॉलिटिकल में एक्सपीरियंस भी जरूरी है, नॉट नेसेसरी कि आप एक अच्छे पर्सन हैं तो आप एक अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं। जैसे अगर हम अभी करें, जैसे डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, टॉप नॉच बिजनेसमैन, लेकिन आप देख ही सकते हैं कि पूरी इकोनॉमिक पूरी वर्ल्ड में जो है भी सिचुएशन टॉपसी टर्वी चल रही है। सही है, तो नॉट एवरी बिजनेसमैन इज अ गुड पॉलिटिशियन। बट सर देखें, हल भी उन्होंने ही किया, मतलब जब when it comes to uncertainty, he was actually the one who was able created and then crumble and then still solving the। लेकिन मैं कहूंगा, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट देना तो बहुत जरूरी है, कि ये भी उनके जो मकासद थे इस सब अनसर्टेनिटी सिचुएशन के पीछे, अनसर्टन सिचुएशन के पीछे, इसके पीछे भी मेन मकसद बिजनेस ही था, जो कि मेन आपको पता है पॉलिटिक्स के पीछे जो है बिजनेस इज ऑलवेज देयर। बिजनेस है तो पॉलिटिक्स है, और एक दूसरे के साथ 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 चलते रहते हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल सही, ऐसा ही है। So guys, this was Concepts in Chai with Sir Waqas. It was a lovely time having him. बहुत अच्छी insights इन्होंने दी, especially मुगल era, pre-partition का बहुत strong hold रखते हैं, और इन्होंने काफ़ी अच्छी insights दी हमें, और हमें economics और history को connect करने में help की। And it reflects कि जो हमारी पुरानी subcontinent की economics की और economics की history है, it's not much different from the current situation. उस वक्त भी greed था, उस वक्त भी corruption थी, आज भी वही है, सिर्फ different scenarios में, different लोगों की शक्ल में, different systems. So this was Concepts in Chai. I would appreciate if you like and subscribe and share this amongst your friends. All the best. Allah Hafiz.